ओके, चलिए एक प्रार्थना के साथ आज के इस दिन की शुरुआत करेंगे। अपने स्थानों पे बैठ जाइए, अपनी एकाग्रता को ठस्त पे ले आएँ, अपने हृदय को खोलें और साथ में प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ दोहराइए। हे दिव्य माँ, परमपिता, मित्र, प्रियतम ईश्वर, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्ण, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, प्रिय गुरुदेव परमहंस योगानंदा जी, सभी धर्मों के महान संत, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रिय गुरुदेव, हम आमंत्रित करते हैं आपकी उपस्थिति को, आपके प्रेम को हमारे हृदय में आज के इस सत्संग में हमें आशीर्वाद दें कि हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। हमें आशीर्वाद दें कि हम आपके प्रेम, आपके आनंद को जान सकें और इसका माध्यम बन सकें सभी के लिए। ओम शांति शांति। आइए एक भजन साथ में करेंगे।
सीधे होकर बैठ जाएंगे, अपनी एकाग्रता को कुटस्थ पे लेके आए और बस कुछ क्षणों के लिए हम ध्यान करेंगे, महसूस करेंगे योगानंद जी की उपस्थिति को। महसूस करें कि वे हमारे साथ, वे हमारे निकट हैं। हम अब मिलके स्वामी जी के एक संगीत सुनेंगे। ओ मास्टर अंग्रेजी में है, मैं इसकी शब्द चैट में लिखूंगा, बट कोशिश कीजिए अगर आपको शब्द समझ में भी ना आए अच्छे से, कि इसके भाव को महसूस करने की। ये गुरु जी को संबोधित किया गया है, जैसे कि ये आपके हृदय से निकल रही है, इसे वैसे महसूस करते हुए इस संगीत को सुनिएगा। O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. The time has come for us to see that there's but one reality upon the earth and high above, the truth that all was made from love. A love that calls to us to fly above the hills, above the sky, above the storms, above the pain, a land where peace and laughter reign. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. Guide all our hopes and all our dreams, past every glow that only seems, into the light, the inner sun, into the truth that we're all one. Help us to find in every hour, in every thought, in every flower, a joy that spans eternity.
reality, the truth that makes us ever free. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. The time has come for us to see that there's but one reality upon the earth and high above, the truth that all was made from love. A love that calls to us to fly above the hills, above the sky, above the storms, above the pain, a land where peace and laughter reign. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. Guide all our hopes and all our dreams, as every blow that only seems into the light, the inner sun, into the truth that we're all one. Help us to find in every hour, in every thought, in every flower, a joy that spans eternity, the truth that makes us ever free. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. O Master, may thy joy fill our days. O Master, may thy wisdom guide our ways. इसके बाद एक और छोटा सा 4 मिनट का क्लिप है जहाँ पे स्वामी क्रियानंद जी बता रहे हैं। स्वामी जी उपस्थित थे जिस समय गुरु जी वो एक लेक्चर दे रहे थे और उस समय उनकी महासमाधि हुई। और गुरु जी ने कहा था कि मैं अपने इंडिया, भारत और अमेरिका के बारे में बात करते हुए जाना चाहूँगा। और कैसे उन्होंने पहले बताया था कि हार्ट अटैक जो है सबसे आसान तरीका है जाने का, और मैं वैसे चाहूँगा इस शरीर को छोड़ना। और स्वामी जी शेयर करते हैं कैसे कैसे ये सारी चीज़ें उस दिन सच होने वाली थी। तो पहले उनके शब्दों में हम सुनेंगे। Years ago, Master had said, "When I leave this earth, I want to go speaking of my America and my India." In a song about India that he had written to the tune of the popular song My California, he paraphrased the ending of that popular version with the words, "I know when I die, in joy I will sigh for my sunny, grand old India." Once, too, in a lecture he had stated, "A heart attack is the easiest way to die. That is how I choose to die." This evening, all those predictions were to prove true.
Master was scheduled to speak after the banquet. His brief talk was so sweet, so almost tender, that I think everyone present felt embraced in the gossamer net of his love. Warmly he spoke of India and America, and of their respective contributions to world peace and true human progress. He talked of their future cooperation. Finally, he read his beautiful poem, My India. Throughout his speech, I was busy recording his words, keeping my eyes on my notebook. He came to the last lines of the poem, where Ganges, woods, Himalayan caves, and men dream God. I am hallowed. My body touched that sod. Sod became a long-drawn sigh. Suddenly, from all sides of the room, there was a shriek. I looked up. "What is it?" I demanded of Dick Hames, seated beside me. "What happened?" "Master fainted," he replied. "Oh, no, Master, you wouldn't faint. You've left us. You've left us." The forgotten playwright in me cried silently, "This is too perfect a way for you to go, for it to mean anything else." I hastened to where Master lay. A look of bliss was on his face. Virginia Wright was stooped over him, trying desperately to revive him. Mr. Ahuja, the Consul General, came over to me and put an arm around my shoulders to comfort me. Never, dear friend, will I forget that sweet act of kindness. They brought Master's body to Mount Washington and placed it lovingly on his bed. One by one we went in, weeping, and knelt by his bedside. "Mother!" cried Joseph. "Oh, Mother!" Indeed, Master had been a mother to us all. Ah, and how much more than a mother! Miss Lancaster gazed at me in anguish. How many thousands of years it took, marveled an older disciple, gazing upon him in quiet awe, to produce such a perfect face. Later on, after we'd left the room, Dayamata remained alone with Master's body. As she gazed at him, a tear formed on his left eyelid and slowly trickled down his cheek. Lovingly she caught it with her handkerchief. In death as in life, he was telling his beloved disciple, and through her the rest of us, I love you always, through endless cycles of time, unconditionally, without any desire except for your happiness, forever in God. तो जैसा कि आपने सुना इस स्वामी जी की के शब्दों में, और आप वो भाव भी आप श्योर महसूस कर पा रहे होंगे उनके शब्दों से, कि ये उनके लिए भी कितना कठिन था कि गुरुजी के उस समय वहाँ पे रहना। और वो जैसा उन्होंने कहा कि गुरुजी भारत और अमेरिका के बारे में बात करते हुए जाना चाह रहे थे, और जैसे कि उन्होंने वो कविता लिखी है माई इंडिया, और उसके जो आखिरी शब्द है कि आई एम हैलोड, जो गैंजीज वुड्स हिमालयन केव्स, वो हमारी गंगा की बाजू नदियां, जो इतनी पवित्र नदियां हैं, जो इतने पहाड़े हैं, जो जो जंगल है, उनके बारे में वो बताते हुए कि मैं पवित्र हूँ, कि मेरा शरीर इस जगह पे जन्म लिया है और इस भूमि को छू पाया है, वही उनके आखिरी शब्द थे। और वैसा करते हुए उन्होंने अपने शरीर त्यागे, और जैसा स्वामी जी बता रहे थे कि एक बहुत आनंद जो उनके चेहरे पे वो झलक रहा था, पता नहीं कितने कितने जन्मों के कार्य के बाद वैसा स्माइल किसी के चेहरे पे दिख सकता है। और एक जैसे
शिष्य थे कि वो आए उनके पास और उनके पास जाके माँ माँ करके रोने लगे, कि वो उनके लिए माँ के तरह थे अपने शिष्यों के लिए। एंड जैसे दया माता आई थी तो उनके गुरुजी की आंखों से एक आंसू निकल आए, और दया माँ ने एक रुमाल में उस आंसू को पकड़ा, और तो स्वामी जी कह रहे हैं वो इस चीज का प्रतीक था कि उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए हम सभी के लिए है। योगानंद जी, हम लोग अ, योगानंद जी, ये नहीं कि उनका जन्म 1896 में हुआ और उनकी समाधि महासमाधि 1952 में हो गई, कि वो एक वैसे रियलिटी नहीं है जो समाप्त हो गए हैं। उनकी चेतना, उनकी उपस्थिति अभी भी इस क्षण मौजूद है। और जैसे इवन वो अपनी कविता में लिखते हैं समाधि में कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नो मोर, एवर प्रेजेंट आई आई एवरीवेयर, कि भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल से वो पड़े हैं, कि तीनों में वो मौजूद है, उनकी उपस्थिति है। और उनकी उपस्थिति हमेशा रहेगी, कि हाँ वो एक क्षण था जहाँ पे वो शारीरिक रूप से मौजूद थे, और अभी उनकी मौजूदगी चेतना में है, उनकी ऊर्जा में है। एंड स्वामी जी को जैसे उन्होंने कहा था कि स्वामी जी इसमें भी जैसे बोल रहे हैं कि वो आंसू जैसे थे उनके प्रेम का प्रतीक था। और आप में से कईयों ने आई एम श्योर पढ़ा होगा या सुना होगा जब स्वामी जी पहली बार मिले थे योगानंद जी से, और योगानंद जी ने बहुत देर उनके अंदर झांका, उन्हें लगा कि उनकी आत्मा को वो परख रहे हैं। और फिर उसके बाद योगानंद जी ने क्या शब्द कहा कि मैं तुम्हें अपना बिना शर्त प्रेम देता हूँ। बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे कि आई गिव यू माई अनकंडीशनल लव, कि ये शब्द आसानी से नहीं कहे जा सकते। और बिना शब्द के प्रेम का अर्थ है कि बिना किसी कंडीशन के, कि फिर ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम अच्छा करें बुरा करें या जो भी करें, कि उनका प्रेम हमारे लिए हमेशा है। और हमें ये समझना है कि ये सिर्फ वो स्वामी जी के लिए नहीं कह रहे थे, कि स्वामी जी के माध्यम से वो हम सभी के लिए ये चीज वो बता रहे थे कि उनका प्रेम हम सभी के लिए है। स्वामी जी को जब गुरुजी अपने इस जीवन के आखिर आखिर में थे तो वो अपने शिष्य को हिंट्स दे रहे थे कि जैसे वो बताते कि एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है, उस दिन एक बहुत बड़ा दिन है, और कुछ कुछ गाइडेंस देके जाते। स्वामी जी को उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें वॉल्टर्स करके बुलाते और कहा था कि वॉल्टर्स, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कि अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, वॉल्टर्स आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू, आई वांट यू टू नो दैट, मैं ये चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। एंड क्या वो खुशी सिर्फ इस वजह से कि जो 3.5 साल स्वामी जी गुरु जी के साथ थे उसमें उन्होंने अच्छा कार्य किया उस वजह से? शायद केवल उतना नहीं, शायद इतना भी नहीं कि जितने पूर्व जन्मों के साथ गुरुजी स्वामी जी साथ में थे और साथ में कार्य किया उस वजह से भी नहीं, बट ये उस चीज का प्रतीक है कि उनका जो बिना शर्त जो प्रेम है वो हमेशा उनके साथ है, कि वो किसी भी कारण से वो बदल नहीं सकता, किसी भी बाहरी रूप से या बाहरी परिस्थिति से वो बदल नहीं सकता, कि वो उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। एंड और योगानंद जी ने कहा था जब स्वामी जी ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ उतना ही मौजूद रहेंगे? और गुरु जी ने कहा कि फॉर दोज हु थिंक मी नियर आई विल बी नियर, जो महसूस करेंगे कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ रहूंगा। और ये चीज उन्होंने ये नहीं कहा कि जो शिष्य जो क्रियावान मेरे बारे में सोचेंगे मैं उनके पास रहूंगा, हाँ ये तो मेरे शिष्य हैं, उन्होंने सबके लिए कहा कि जो मुझे जो मेरी उपस्थिति
को महसूस करने की कोशिश करेंगे, जो सोचेंगे मुझे उनके निकट, जो मेरे बारे में सोचेंगे मैं उनके निकट रहूंगा। और ये चीज इनफैक्ट उन्होंने कई बार दर्शाया कि काफी स्टोरीज है, मे बी मैं एक आध शेयर करूंगा। जैसे योगानंद जी एक बार गाड़ी से जा रहे थे और अचानक उन्होंने गाड़ी रोक दी। उनके साथ एक देवी मुखर्जी करके एक शिष्य थे, और एक दुकान था, शाम का समय हो गया था, और उन्होंने बोला रोको। और वो गए और वहां पे उस दुकान में गए, और दुकान में जाके फिर बहुत सारी चीजें वो ऐसी वो ऐसी जरूरत की चीजें नहीं, रैंडम चीजें वो लेने लगे। एंड उन्होंने फिर जाके वहाँ पे जो रिसेप्शन है वहाँ पे दिया, और जो रिसेप्शनिस्ट थी एक लेडी थी, उन्होंने कैलकुलेट करके जब वो अमाउंट आया कि इतना अमाउंट देना है, उनकी वो जो लेडी थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने कहा कि भगवान ने आपको भेजा है कि मुझे ये इस इतने पैसे की सख्त जरूरत थी, और रात का समय हो चुका था, मेरी बेटी अस्पताल में है, मुझे ये घर का किराया देना था, और मुझे पता नहीं कि कैसे मैं ये कर पाऊंगी, और भगवान ने आपको भेजा। आई मीन ऐसी कई कई कहानियां हैं। योगानंद जी जब लॉस एंजलिस में थे, वहां पे जो बार्स हुआ करते थे वहां पे काफी समय आगे पीछे चलते। और स्वामी जी बताते कि मुझे पता है कि वो क्या करते थे उस समय की, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ जब स्वामी जी एंसिनीटिस में थे, 29 पाम्स में थे उनके साथ, गुरु जी के साथ सेक्लूजन में। तो एक बार ऐसे हुआ कि गुरु जी उनका जो कुटीर था उनके बाहर चल रहे थे वो आगे पीछे, और अचानक से स्वामी जी की आंख खुल गई, रात में था, नींद खुल गई, और बहुत तीव्र एक ऊर्जा उन्हें महसूस हुई। और स्वामी जी देखे कि उनके पास उनके एक गुरु भाई थे, वो ऑलरेडी बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे। और स्वामी जी तुरंत वो बैठ गए ध्यान में, और उन्होंने देखा कि बाहर गुरु जी टहल रहे हैं। और बहुत गहरा अनुभव हुआ उन्हें, और उस बात से उन्हें महसूस हुआ कि गुरुजी उन्हें अपनी ऊर्जा डाल रहे थे। और तो उस चीज को वो रिलेट करके बताते कि गुरुजी की जो करुणा थी, जो दया थी, उन लोगों तक भी जाती कि वो इस स्थान में है, वो भुगत रहे हैं कि ईश्वर की कृपा उन्हें भी मिले। और ऐसी कई कहानियां हैं जो जब हम गुरु जी की जीवन को पढ़ेंगे तो उसमें और जान पाएंगे कि उनका प्रेम हम सभी के लिए है। और ये सबसे बड़ी देन है कि हम हाँ, जो गुरुजी आए थे कि उनका क्या कार्य था, किस वजह से वो आए थे। ऑफ कोर्स उनका एक वर्ल्ड चेंजिंग मिशन था कि इन शिक्षाओं को वो ले आना चाहते थे, क्रिया योग की, जो लोगों की जीवन को, लोगों की चेतना को परिवर्तित कर सके। बट सिस्टर ज्ञाना माता जो उनकी एक बहुत एडवांस्ड डिसाइपल थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ कि गुरुजी आए हैं पूरे विश्व को बदलने के इस मिशन के साथ, बट मैं अपने हृदय में ये भी मानना चाहूंगी कि वो मेरे लिए आए हैं कि मुझे परिवर्तित करने, मुझे मुक्ति डालने के लिए। और वो भी एक बहुत सही बात है कि ऑफ कोर्स वो पूरे विश्व के लिए आए हैं, बट वो हमारे लिए, हम सभी के लिए, ये सिर्फ सिस्टर ज्ञाना माता के लिए नहीं, कि वो हमारे लिए वो आए हैं कि हमें बदलने के लिए। और कितना वो हमें बदल सकते हैं, कितना वो हमें उनका प्रेम दे सकते हैं, जितना हम खुद के हृदय को खोलेंगे, जितना हम खुद ओपन होंगे उनकी प्रेम को महसूस करने के लिए, उतना हम उन्हें महसूस कर पाएंगे। और और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं आज, क्योंकि सुबह का समय है और मैं चाहूंगा मैं ज्यादा बात ना करूं, इवन आई एम श्योर स्वामी जी और उस संगीत के भाव के साथ आप ऑलरेडी गुरु जी की उपस्थिति को बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हम साथ में ध्यान में गहरा जाके और गहराई से उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। करीब हमारे पास 50 मिनट के आसपास है, तो हम करीब उतना ध्यान करेंगे। मैं एक और भजन करूंगा, और उसके बाद थोड़ा सा मैं इनिशियली गाइड करूंगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नए भी जुड़े हैं, आई एम श्योर। तो शुरुआत में मैं कुछ गाइड करूंगा और फिर हम लोग
आखिर में मे बी 4-5 मिनट के लिए जैसे हीलिंग प्रेयर्स के साथ समाप्त करेंगे और इस चेतना को सभी के साथ बांटने की कोशिश करेंगे। ये जो खासकर ये दिन हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं कि ऑफ कोर्स गुरु जी की उपस्थिति तो हमेशा है, बट इन दिनों में खासकर उनकी उपस्थिति को महसूस करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में सब लोग उन्हें पुकारते हैं। और जब खासकर एक संत अपना शरीर छोड़ता है तो उस समय बहुत ऊर्जा पूरे विश्व में फैलती है। और ये जो ऊर्जा है या ये जो चेतना है, ये समय या स्थान इससे कोई निर्धारित नहीं होती है कि ये समय से परे है, ये स्थान से परे है। और इस वजह से हम अभी भी जब हम ध्यान करेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत स्ट्रांगली महसूस कर सकते हैं। बट हमें ये विश्वास के साथ करना है कि जैसे गुरुजी ने कहा कि फॉर दोज हु थिंक मी नियर आई विल बी नियर, तो सबसे पहले हमें सोचना है, हमें उन्हें आमंत्रित करना है, एंड देन ऑफ कोर्स वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। तो चलिए इस भजन के साथ हम अपनी साधना में जाएंगे। गुरु वंदना से शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुदेवा श्री 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 चलिए हम शुरुआती कुछ टेक्निक साथ में करेंगे ध्यान में गहरा जाने के लिए। सबसे पहले दोहरा सांस लेंगे, पूरे शरीर को कसेंगे, दोहरा सांस छोड़ते हुए शिथिल हो जाएंगे। 2 बार और। पूरे शरीर को कसते हुए पैर से लेकर सर तक और ऊर्जा के साथ, एकाग्रता के साथ और पूर्ण रूप से शिथिल होंगे। अपना आसन एक बार जांच लें। मेरुदंड सीधी, हथेलियां पेट और जांघ के संधि स्थल पर ऊपर की ओर मुड़ी हुई, कंधे पीछे, छाती खुली हुई, ठुड्डी जमीन से समतल। आंखें बंद कर लें। बंद आंखों की पीछे की दृष्टि जैसे दूर किसी पर्वत चोटी के तरफ एकाग्रत। इस आसन को बनाए रखेंगे और उसके साथ अपने शरीर को शिथिल भी रखेंगे, जितना हो सके स्थिर और शिथिल। एक बार मानसिक रूप से अपने शरीर को भी जांच लेंगे ताकि कहीं भी कोई भी तनाव हो उसे आप शिथिल कर पाए कॉन्शियसली। अपनी जागरूकता अपने पैरों में लेके आइए, पैरों की उंगलियों में। और अगर कहीं भी कोई तनाव है उसे शिथिल करिए। धीरे धीरे ऊपर आए, अपने टखने, पिंडली, घुटने, जांघें, कूल्हा, कहीं भी कोई भी अगर तनाव आप महसूस कर पा रहे हैं उसे शिथिल कर दें। कमर से शरीर का निचला हिस्सा पूर्ण रूप से शिथिल करें। महसूस करें हल्केपन को, या पूर्ण रूप से शिथिल है। खासकर शरीर का निचला हिस्सा, हल्केपन को महसूस करें। और अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को महसूस करें, एक गहरी शिथिलता अपनी उंगलियों में। ये कलाई, ऊपरी बाहु, अगर बाहु, कोहनी, ऊपरी बाहु, कंधा, छाती, पेट। एक बार एक गहरा श्वास लें अपने पेट को फुलाते हुए और श्वास छोड़ें और शिथिलता महसूस करें अपने पेट में। अपना गला, मुंह, मस्तिष्क, पूरा शरीर महसूस करें कि अब पूर्ण रूप से शिथिल है, रिलैक्स्ड है। कोई भारीपन नहीं, शरीर का कोई वजन नहीं, आप मुक्त हैं, आप हल्के हैं। महसूस करें इस हल्केपन को।
अपनी दृष्टि को ठस्त पे बनाए रखें। और अब अपने मन को भी शांत करें। अगर मन में कोई विचारें आ रही हैं, उनसे ना उलझें, उन्हें जैसे समुंदर में लहरें हैं, उन्हें अपनी गति से बह जाने दें। जैसे जैसे हम उनसे अलग होंगे, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अपने विचारों के साथ बिल्कुल ना उलझें, उन्हें अपने आप जाने दें। धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। जो भी विचारें हैं भविष्य के बारे में या भूत में कोई भी हमारी परिस्थिति या कोई भी इमोशंस जिनसे हम गुजर रहे हैं, सभी को महसूस करें। आप पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं उस असीम चेतना में। और आपको एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। अब आप अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता अपने नासिका में ले आ सकते हैं और अपने श्वासों को महसूस करें, जैसे वो अपने आप अपनी गति से आ रही है और अपने आप अपनी गति से जा रही है। आप में से जिन्हें हॉन्गसॉ टेक्निक के बारे में पता है, अब आप हॉन्गसॉ का अभ्यास कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और फिर क्रियावान सबने क्रियाएं कर सकते हैं। जिन्हें कोई भी टेक्निक नहीं पता है, आप केवल अपने नासिका में अपने श्वास को महसूस करें और हर एक श्वास के साथ एक बढ़ती हुई शांति, आनंद को महसूस करने की कोशिश करें। आप अपने हिसाब से टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं, बट आखिर के 10 से 15 मिनट कोशिश कीजिएगा एकांत में बैठें और केवल इस साधना से उत्पन्न चेतना को, स्पंदनों को महसूस करें, उसमें गहरा जाए। याद रखिएगा कि हम आनंद को पाने के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी आनंद में हैं। हम ऑलरेडी उस प्रेम में हैं जो गुरुओं से आ रही है, खासकर आज के दिन योगानंद जी से आ रही है। उनके साथ ध्यान करें, महसूस करें उनको अपने हृदय में, कि आपका शरीर उनका शरीर एक है। और उस चेतना के साथ ध्यान करें। जितना हम अपने हृदय को खोलेंगे और उनके साथ ध्यान करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनकी चेतना हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी। तभी हम ध्यान में बैठेंगे, खुद से ध्यान करें।
महसूस करें एक प्रकाश को अपने हृदय में। ये प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है, फैल रहा है आपके पूरे शरीर में। सफेद या सुनहरे रंग का प्रकाश धीरे धीरे और फैल रहा है आपके पूरे कमरे में। इस प्रकाश के साथ एक प्रेम, आनंद और शांति की चेतना भी विस्तारित हो रही है। महसूस कर इस प्रकाश को धीरे धीरे और बाहर फैलते हुए। आपके सभी परिवारजनों में ये प्रकाश फैल रहा है आपके पूरे घर में। आपके शहर में धीरे धीरे इस प्रकाश को विस्तारित करें। इसकी कोई सीमा नहीं है, असीम रूप से ये शक्तिशाली। हमारे पूरे देश को महसूस करें इस प्रकाश में। पूरे विश्व को महसूस करें इस प्रकाश में। ये दिव्य प्रेम, शांति पूरे विश्व में फैल रहा है। पूरे विश्व के सभी प्राणियों में ये प्रेम, ये शांति की चेतना उत्पन्न हो रही है। न केवल हमारे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी में, पर पूरे ब्रह्मांड में महसूस करें इस प्रकाश को फैलते हुए। धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाश फैल रही है, चारों तरफ इस प्रकाश की ज्योति से उज्ज्वलित कर रही है। जिन भी लोगों को ये प्रकाश छू रही है, उन्हें ईश्वर का प्रेम, शांति महसूस हो रहा है। और अब दिव्य माँ से प्रार्थना करते हुए हम 3 ओम की ध्वनि भेजेंगे पूरे विश्व में। मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराइए। हे दिव्य माँ, आप सर्वव्यापी हैं। आप अपने सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति सभी के शरीर, मन और आत्मा में अभिव्यक्त करें। और अपनी हथेलियां रगड़ें और 3 ओम के साथ इस ऊर्जा को बांटेंगे। ओम। ओम। ओम।
आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गुरु जी का आशीर्वाद, उनका प्रेम आप सभी के साथ सदा बना रहे, यही अ, इच्छा रहेगी। एंड ये एक बहुत पावरफुल वीकेंड है। आज गुरु जी की महासमाधि है। 9 तारीख को रविवार को श्री युक्तेश्वर जी की महासमाधि है। और उस दिन कुछ कुछ प्रोग्राम्स भी है। उस दिन सुबह 10 से 11 बजे ज्योतिष देवी जी का एक सत्संग रहेगा, जिनका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। शाम को एक सत्संग भी रहेगा 7 बजे से 8:30 बजे तक। अनाउंसमेंट सारे आपको दिखेंगे ग्रुप में, बट मैं पहले से बताना चाहूँगा कि अपना ये समय खासकर थोड़ा सा ब्लॉक रखें गुरुओं के लिए, और उनसे अनुकूलन करने की कोशिश कीजिए। इवन आज के पूरे दिन जो भी आप कार्य में अभी जाएंगे निकलेंगे, गुरु जी को बना के रखिए। योगानंद जी को, भले ही आप उनके शिष्य हैं या अभी तक आपने शिष्यत्व नहीं ली है, उनकी उपस्थिति को महसूस करने का अभ्यास करें, और उनका आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ रहेगा। यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम गुरु।